Hello everybody and welcome to the channel. Thank you for joining me guys and let's get started with your सुम्बुल्स रीडिंग. चलिए देखते हैं सुम्बुल के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है उनके फैंस के लिए. So let me pick up the cards. We will see the overall energy. Thank you dear angels for the guidance and blessings coming for Sumbul. Thank you so much. Okay, so we have this card. Thank you dear angels for the guidance and blessings coming for Sumbul. What's really happening in her life right now? The energy is prevalent. Thank you so much for the guidance coming for Sumbul and all our fans. Thank you. Thank you so very much. So we definitely have this card. Let's ask for one more card and we have the two. Thank you dear angels for the guidance and blessings coming for Sumbul. Thank you so very much. We have the card. Thank you for the guidance and blessings coming for Sumbul, dear angels. We thank you so very much. Okay, so this card has kind of jumped out and fallen down. कौन सा card है ये? This card is about staying optimistic. Staying optimistic, okay. I think पहले वाली reading, actually I made these little videos on these people. So I'll post those videos as well. You can watch if you want, but I was not able to kind of, really finish it off. So stay optimistic है. चलिए देखते हैं क्या है. Creativity. What is the major energy happening in her life? Not for you. There is something that is not for her. Not for her. What is this energy? Let's check it out. Wedding. Wedding की एनर्जी है. और यहाँ पे क्या हो रहा है? What is this? Sorrow. तो यहाँ पे sorrow का कार्ड है. यहाँ पे इसीलिए शायद उसे stay optimistic बोला जा रहा है because there is some sorrow energy over here. There is kind of feeling sad for something. But wedding है. Wedding. अब किसकी wedding हो रही है? यहाँ पे क्या हो रहा है? बट जो भी है यहाँ पे वेडिंग का एनर्जी है और सौरो की एनर्जी है. ओके, किसी की शादी हो रही है, उसको दुख हो रहा है. आई डोंट नो व्हाट इज रियली हैपनिंग बिकॉज आई एम टोटली नॉट इन टच विथ ऑल दीज थिंग्स. व्हाट्स रियली हैपनिंग इन देयर लाइफ. तो नॉट फॉर यू, देयर इज समथिंग. ओके, तो यहाँ पे एक तो चीज हो रही है. ये दोनों कनेक्टेड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. वी विल सी हाउ इट गोज. बट देयर इज समथिंग दैट इज happening in Sumbul lives. It looks like that is probably she wants it क्योंकि sorrow का कार्ड है और वहाँ पे शायद ऐसी कुछ चीज़ हो रही है सुम्बुल के लाइफ में जो कि शायद उसको चाहिए और उसको नहीं मिल रहा है. तो वो काफ़ी दुखी है. she is kind of she is feeling sad about it. उसे दुख हो रहा है. But then again there is something like that is telling that it is not for you. So don't feel sad. Be optimistic. Find a creative solution to the problem. Okay, तो ये ये ओवरऑल एनर्जी हम सुम्बुल की लाइफ की देख रहे हैं.
अब let's get into the finer details of what is this really telling us. Sorrow, stay optimistic, find there is a solution to your problem, not for you, and there is a wedding card. अब किसी की शादी से sorrow हो रहा है. As far as I remember, I don't know who's getting married right now, if anybody is getting or not, but शादी जहाँ तक मुझे याद आता है उसके फादर की शादी हुई थी, right? तो उससे रिलेटेड सॉरो है, ये भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों कार्ड सेम हैं. तो इज दिस सॉरो रिलेटेड विद सम वेडिंग? बट जो भी है, एक चीज़ बोला जा रहा है कि इट इज़ नॉट फॉर यू. जो भी चीज़ है, और तुम ऑप्टिमिस्टिक रहो. जो भी सॉरो तुम्हारे इसके लाइफ में कॉज कर रहा है ना, वट एवर थिंग दैट इज कॉजिंग सॉरो इन हर लाइफ. सी दीज टू कार्ड्स आर टुगेदर. सो व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट इज सम वेडिंग दैट हैपेंड or is happening, I don't know, that is creating sorrow in her life. Okay, ये हो सकता है. मुझे उसकी फादर की वेडिंग हुई थी, ये मुझे पता है. आई एम नॉट श्योर इफ any other wedding is happening right now. Plus there is something that is not for her. Stay optimistic, there is a solution to whatever problem you are facing. Okay, so this is what is happening in Sumbul's life. Now let's see what are the energies. So if you see that she is feeling, यहाँ पे भी देखो Knight of Cups है. Okay, Knight of Cups in reverse and the 8 of Sword in reverse. Now both these cards are reverse. So I don't know, is Fahman getting married or what it is. Knight of Cups in reverse में है and she is feeling totally. Knight of Cups is always about, you know, the lover का card, that emotional love and stuffs like that, and you feeling totally blocked. But anyways, let's see. Thank you, dear angels, for the guidance and blessings coming for Sumbul, for all her fans. We thank you so very much for this. We have the Queen of Wands. We have the Devil in reverse. And we have the 6 of Cups. What do we have at the back of the deck? 8 of Pentacles is more like not able to focus on her work. Okay. Because of the sorrow, there is something that is making us sorrowful in her life. कोई एक चीज़ है जो उसके, बोलते हैं ना, जैसे कि उसके माइंड स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है. पास में एवरीथिंग वाज गुड ऐसा लग रहा है. She has been confident, Queen of Wands. She has been quite confident, working on her things. Present में ये devil energy उस पे हावी हो गई है, and this devil energy is more like some illusion, okay? जो कि एक sorrow create कर रही है उसके life में. More like, जैसे कि 8 of Sword आपने देखा है ना, कि 8 of Sword is what it is all about, feeling trapped in situation. और नॉट बीइंग एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन. डिसीजन नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको बांध दिया है. और यहाँ पे एक डेविल की एनर्जी है. तो कोई एक इल्यूजन है जो कि उसको लग रहा है कि यू नो इसके बिना तो मेरा काम नहीं चलेगा, नॉट फॉर यू. बट इट इज़ समथिंग लाइक शी फील्स लाइक दैट. अभी भी सिचुएशन बेटर हो सकता है. यू ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू. डोंट क्विट राइट बिफोर द मिरेकल अकर्स. और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स के साथ जो कि फ्यूचर की एनर्जी है, शी इज गेटिंग समथिंग. सॉरो एंड डेविल, दे आर, सॉरो के नीचे ही ये डेविल का कार्ड है. सो देर इज सम सॉरो, देर इज समथिंग, ओके, देर इज समथिंग दैट इज मेकिंग हर फील वीक एंड दैट शी हैज लॉस्ट इट. बट ये उसका इल्यूजन है. ओके, वो ऐसा सोच रही है पर रियलिटी ऐसा नहीं है. मे बी यू नो एक किसी तरह का सॉरो या लॉस वो बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करके देख रही है.
you know, it is creating an illusion in her life that, but it is not like that. इस तरह की चीज़ें लग रही हैं. There is a solution to the problem whatever she is facing. Actually, if you see the, जैसा कि मैंने बोला आपको कि I had done a reading on them, तो अगर I mean कुछ दिन पहले मैंने किया था रीडिंग. I mean I think 2-3 days back or sometime I had done the reading. तो वहाँ पे जो एनर्जी थोड़ी सी चेंज हो गई है उस दिन से. वहाँ की एनर्जी जो थी यहाँ पे था 8 of Wands in reverse, यानी कि पास्ट में शायद थिंग्स वर नॉट फॉलोइंग इन प्लेस फॉर हर. आई विल पुट दैट वीडियो, यू कैन वॉच दैट एज वेल. सो इन पास्ट में बेबी सुम्बुल के लाइफ में थिंग्स वर नॉट फॉलोइंग इन प्लेस, बट इन दैट वीडियो आई हैड एक्सप्लेन यू कि कैसे वो बस एक टेम्पररी फेज था जहाँ पे इट वॉज मोर लाइक यू नो द एरो इज बीइंग पुल्ड बैकवर्ड बिफोर इट लॉन्चेस. तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो वहाँ पे बीच में जो कार्ड आया था वो था 9 of Pentacles का. नाउ 9 of Pentacles इज अ कार्ड ऑफ बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट एंड इट इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ड्रीम कम ट्रू, जहाँ पे आपने अपने आप पे मेहनत किया, हिम्मत नहीं हारा, सेल्फ डाउट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, एंड फाइनली यू नो इट्स योर क्राउनिंग ग्लोरी मोमेंट. अगर वो एनर्जी देखो तो 9 of Pentacles की यहाँ पे थी, अब वो एनर्जी यहाँ पे आ गई है, यानी कि Queen of Wands में बदल गई है. Queen of Wands की भी जो मेजर एनर्जी क्या होती है, दैट शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बिलीव्स इन हर सेल्फ, शी गोज आउट फॉर वॉट शी बिलीव्स इन. तो 9 of Pentacles eventually moves on to Queen of Wands. Can move on to Queen of Wands. She can move on to any other thing also. But here अगर हम जो देख रहे हैं एनर्जी 9 of Pentacles after you know few things not falling in place, which was basically arrow being pulled backward before she launches herself. तो शायद 9 of Pentacles के साथ जिस चीज़ पे भी उसने मेहनत किया था, या फिर जो सीरियल कुछ समय पहले हम बात कर रहे थे ना, उसका जो सीरियल आया था तो उस समय शायद ठीक नहीं था, बट उसका जो प्रेडिक्शन मैंने किया था उसके हिसाब से द सीरियल इज गोइंग टू बी हिट. तो अब 9 of Pentacles है तो हो सकता है कि वो सीरियल हिट हो गया होगा. सो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गई है. लेकिन ये कॉन्फिडेंट और 9 of Pentacles की जो ये एनर्जी थी अब वो पीछे यहाँ पे मूव हो गई है. द एनर्जी हैज़ चेंज्ड अ बिट. और वहाँ की जो 7 of Sword की जो ट्रिकरी वाली एनर्जी थी जो कि फ्यूचर में आने वाला था, वो अब प्रेजेंट में आ गया है. यानी कि देयर कुड बी सम पर्सन ऑल्सो दैट इज डिसीविंग हर, क्योंकि 7 of Sword में वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ चुरा के उसके तरफ दौड़ रहा है. ओके, मोर लाइक यू नो somebody kind of giving her a proof against somebody. And this is the devil energy. तो जैसा कि what I am picking up in this reading is कि उसको जो दुख हो रहा है, यू नो द सैडनेस दैट शी इज फीलिंग फॉर समथिंग, द सॉरो दैट शी इज फीलिंग फॉर समथिंग, एक्चुअली इट्स अ इल्यूजन. कोई उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहा है या फिर उसको कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसके कारण से उसको बहुत दुख हो रहा है. ओके, क्योंकि उस एनर्जी में अगर हम पहले वाली रीडिंग में जाएं तो वहाँ पे 7 of Sword की एनर्जी थी जहाँ पे एक ट्रिकरी करने वाला इंसान उसकी तरफ बढ़ के आ रहा था. ओके, तो शायद उसे कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है जिसके कारण यू नो एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है डेविल वाला. और इसीलिए शायद उसको बोला जा रहा है कि स्टे पॉजिटिव, थिंग्स आर नॉट एज बैड एज यू आर थिंकिंग एंड देर इज अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हर चीज़ खराब हो गया, यू नो फीलिंग सैड फॉर इट इज स्टिल पॉसिबल. जो तुम चाह रहे हो इट इज स्टिल पॉसिबल. ट्राई टू लुक फॉर द पॉजिटिव, ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, सोल्यूशन का पॉसिबिलिटी है. डोंट ट्रस्ट द illusion that this devil is creating in her life. And I guess कि कोई उसको शायद मिसलीड कर रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे भी 7 of Sword का कार्ड जो था, वो जो 7 of Sword का जो कैरेक्टर है वो 9 of Pentacles
का जो अवतार है उसकी तरफ दौड़ के आ रहा था, यानी कि ही वॉज ट्राइंग टू स्टील समथिंग फ्रॉम समबडी एंड ही इज ट्राइंग टू टेल हर समथिंग, और एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, यानी कि एक इंफॉर्मेशन आप कहीं से लिए हो, वहां पे सेवन ऑफ सोर्ड, यानी कि वो 5 सोर्ड लेके 2 सोर्ड को वहां छोड़ के आ गया है, यानी कि वो उसने पूरे सोर्ड्स नहीं लिए हैं, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन, सोर्ड्स यानी कि इन्फॉर्मेशन, मैसेज, थिंकिंग, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आप कहीं से लेके आप इसकी तरफ दौड़ के आए हो, इसको बताए हो, लेकिन आपने शायद पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं बताया है, उसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण सैडनेस क्रिएट हो रहा है, बट दिस इज नॉट द होल पिक्चर, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। स्टे पॉजिटिव बोला गया है यहाँ पे, प्लस स्टे पॉजिटिव के साथ 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, यानी कि इट्स मोर लाइक यहाँ पे जो उसे लग रहा है कि शी हैज लॉस्ट समथिंग, शी इज नॉट फॉर यू बोला जा रहा है ना, नॉट फॉर यू, यानी कि यहाँ पे उसे ऐसा लग रहा है कि जो चीज उसका था उससे बिछड़ गया है या छूट गया है, समथिंग लाइक दैट। बट इंटरेस्टिंगली इनफ यहाँ पे नॉट फॉर यू बोला जा रहा है, इट इज नॉट फॉर यू, बट यहाँ पे उसे कुछ दिया जा रहा है। सो कमिंग एनर्जी इन सुम्बुल्स लाइफ इज व्हाट, दैट शी इज गोइंग टू गेट समथिंग। यहाँ पे शी इज फीलिंग सैड दैट समथिंग इज, किसी ने उसको बोल दिया है कि इट इज नॉट फॉर यू। So basically she wanted something and it is like she is not getting it, so she is feeling sad about it। किसी ने उसमें मिर्च मसाला करके कुछ ट्रिकरी करके ओवर they have just blown it out of proportion, तो वो भी चीज़ है। Interestingly enough in future if she stays optimistic, finds the solution to the problem, she is getting something। तो यहाँ सौरों से एनर्जी चेंज हो रही है, that she is getting something। अब ये क्या चीज है, किस पे एप्लीकेबल है, I have no idea, but this is the overall energy। You can pick this energy and apply in her life as per your information of her life or whatever you know about it। It could be related to relationship, यहाँ पे wedding भी है, it could be related with her career, it could be related with famine, I have no idea, लेकिन this is what it is। कोई चीज उसको नो बोल दिया है किसी ने, नॉट फॉर यू, और वो काफी दुखी हो गई है इस बात पे, बट सिचुएशन क्या बोला जा रहा है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक, इट्स अ इल्यूजन। ओके, तो तुम इतना दुखी मत हो, इंस्टेड दुखी होने से अच्छा है कि आप पॉजिटिव रहो और सोल्यूशन पे फोकस करो। इंटरेस्टिंगली इनफ शी इज गेटिंग समथिंग, जो यहाँ पे लग रहा है ना उसको कि नहीं मिल रहा है, उसको नहीं मिला, वो उसके हाथ से निकल गया, शी इज गेटिंग दैट। सो दिस इज व्हाट इट इज। यहाँ पे वेडिंग में क्या हो रहा है, वेडिंग, दिस इज वेडिंग राइट, सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर हर। तो जो वो ट्रिकरी वाली एनर्जी थी ना उस पहले वाले रीडिंग में, अब वो डेविल एनर्जी में चेंज हो गई है। सो आई थिंक शी इज गोइंग थ्रू दिस ट्रिकरी एनर्जी, समबडी इज ट्राइंग टू ट्रिक हर एंड शी डजंट नीड्स टू गेट इनटू दैट। दिस इज व्हाट इट इज। All right, so this is the guidance coming for Sumbul at the moment. Let's see, share your thoughts with me. If it resonates, doesn't resonate, what do you feel about the reading? And if you like the guidance, please like, share, and please like, share, and comment, guys. And don't forget to press the bell icon so that you get notified every time I upload these videos. I will see you in the next video, and bye for now.